मैं स्वीटी शाह प्रस्तुत है आपके सामने आज के समाचार। भारत का 73वां गणतंत्र दिवस पूरे देश भर में स्काउट्स एवं गाइड्स द्वारा मनाया गया। एपीआर वोजम की 5वीं मुख्य स्काउट कार्यकारी सीएससी बैठक 23 से 24 जनवरी 2022 को आयोजित की गई थी। जलवायु परिवर्तन और लिंग सर्वेक्षण 27 जनवरी 2022 को विश्व चिंतन दिवस 2022 के लिए हमारी दुनिया हमारा समान भविष्य विषय के साथ शुरू किया गया था। बीएसजी द्वारा आयोजित कन्नड़ और बंगाली भाषाओं में डिजिटल स्मार्ट जनरेशन स्मार्ट 2.0 प्रशिक्षण। शांति वैश्विक नेटवर्क के दूतों ने 1 फरवरी 2022 को वोजम पहल के पहले वेबिनार को सफलतापूर्वक पूरा किया। राष्ट्र मुख्यालय द्वारा आयोजित कौशल विकास पर वेबिनार की राष्ट्र स्तर की श्रृंखला के दौरान 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। बिहार राज्य भारत स्काउट एवं गाइड्स द्वारा आयोजित वर्चुअल प्लास्टिक टाइट टर्नर जागरूकता वेबिनार। बीएसजी द्वारा आयोजित अपने ज्ञान को बढ़ाएं, स्काउटिंग गाइडिंग को जाने पर वेबिनार। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स राष्ट्रीय साहसिक संस्थान पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में 3रा 723वां अंतर्राष्ट्रीय साहसिक कार्यक्रम शुरू हुआ। राष्ट्र समाचार। नेपाल स्काउट्स के मुख्य आयुक्त लोक बहादुर भंडारी ने श्री राम निदेशक नेपाल स्काउट एसोसिएशन और श्री देवराज घिमेरे वोजम सलाहकार के साथ एनएचक्यू का दौरा किया। निदेशक श्री राजकुमार कौशिक ने उनका स्वागत किया और श्रीमती दर्शना पावस्कर के साथ भारत स्काउट और गाइड की उपलब्धियों को साझा किया। निदेशक कार्यक्रम और प्रशिक्षण में शामिल हुए। स्किल प्रोजेक्ट्स, वैक्स प्रोजेक्ट्स जैसे सर्व स्मार्ट, एबीसी, यू रिपोर्ट, हर वर्ल्ड हर वॉइस के बारे में भी जानकारी साझा की गई। नेपाल के प्रतिनिधियों को खुशी हुई और उन्होंने साहसिक शिविरों या सम्मेलनों जैसे एक दूसरे की संपत्ति को साझा करने और एक साथ बढ़ने जैसे आयोजनों का प्रस्ताव रखा। Joint directors and other professors of BSc and my colleagues from Nepal Scouts. It is my great honor to visit Bharat Scout and Guides National Headquarters and meet all of you guys. India is always close for us. Not only we are neighboring country, but also we are sharing same culture, same language, and so many common others important similarities. Bharat Scouts and Guides always very close to Nepal Scouts from the day one. I am planning to have a sustainable partnership between Nepal and India to engage more young people in different activities. Of course, this is my first visit, but it is going to be a beginning only. I know we need to go a long journey together with a lot of collaboration. My special thanks to Mr. Directors and Joint Directors and all of you for you invite and hospitality, for every delicious foods and informative presentation, and hope to see you soon in Nepal. Thank you. Namaste. Ditch because of this corona, and we are sure that now in future also we will plan. And regarding the utilization of the Nepal Training Center, actually just 3-4 days before, I was discussing with Amar that why not we can have the adventure programs in Nepal. Yes. Yeah. Right, because actually for the fundraising purpose, every year we are organizing about 50 to 60 adventure programs at different locations. Manali, then Darjeeling. We have hired now one campsite permanently from our West Bengal state. Of course, a pandemic time, we are supposed to come here a little bit early, but because of the COVID, we took risks actually, because it's still not yet done. The cases are growing in Nepal as well, and also here. But we think that we cannot stop ourselves. We should move ahead anyway. So that is why we are here. For me personally, whenever I heard about scouting, when I joined as a Boy Scout, the first thing we learned that the scouting started in Nepal because of India. Because the trainer, his name was Sri Ram Bajpai. He was the trainer. He went to Nepal and
in 1952, the scouting was started in Nepal. It's because of him. And whatever the educational materials and the scouting courses we have still now, it's I don't know, we came far, but still more than 80% the courses are same, the activities we are doing are same, and that is why India is always very close to us, not only because we are like a neighbor or the country very near, but also we have lots of similarities that I can express. So एपीआर वोजम की 5वीं मुख्य कार्यकारी सीएसई बैठक 23 से 24 जनवरी 2022 को जूम के माध्यम से आयोजित की गई थी, जिसमें 20 राष्ट्रीय संगठनों एनएसओ का प्रतिनिधित्व किया गया था। बैठक का उद्देश्य मुख्य स्काउट अधिकारियों को इकट्ठा करना और सदस्यता वृद्धि लक्ष्यों, वोजम सेवाओं के प्लेटफॉर्म और डेटा पोर्टल का अपडेट साझा करना, शैक्षिक विधियों, संचार और साझेदारी पर चिंताओं को साझा करना और 2022 से 25 के लिए आगामी क्षेत्रीय योजना पेश करना था। डॉक्टर आर.के. कौशिक, निदेशक भारत स्काउट एवं गाइड्स, ने मीट में भारत स्काउट एवं गाइड्स का प्रतिनिधित्व किया। यूनिसेफ यू रिपोर्ट इंडिया के सहयोग से हमारी दुनिया हमारा समान भविष्य विषय के साथ विश्व सोच दिवस 2022 के लिए 27 जनवरी 2022 को जलवायु परिवर्तन और लिंग सर्वेक्षण शुरू किया गया। बीएसजी रिपोर्टर टास्क फोर्स ने 11 भाषाओं असमिया, हिंदी, उड़िया, बंगाली, तेलुगु, तमिल, मराठी, मलयालम, कन्नड़ और गुजराती में सर्वेक्षण का समन्वय और अनुवाद किया। इस यू रिपोर्ट इंडिया पोल के लिए ट्रिगर शब्द है WTD22। व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम पर अधिक जानकारी के लिए कृपया india.ureport.in देखें। बीएसजी सदस्यों और अन्य युवाओं के लिए बीएसजी डिजिटल स्मार्ट जनरेशन 2.0 प्रशिक्षण 29 जनवरी 2022 को कन्नड़ भाषा में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और 2 से 4 अपराह्न IST और 29 जनवरी 2022 को आयोजित किया गया था। सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक अन्य क्षेत्रीय भाषा बीएसजी डिजिटल स्मार्ट जनरेशन बंगाली भाषा में सर्व स्मार्ट 2.0 प्रशिक्षण 30 जनवरी 2022 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और 2 बजे से 4 बजे तक आयोजित किया गया और 30 सदस्यों ने भाग लिया। राष्ट्र का 73वां गणतंत्र दिवस बीएसजी द्वारा आयोजित एक वेबिनार के माध्यम से मनाया गया, जिसमें सुश्री मैना राव चैंपियन और श्री अमल प्रकाश के सिंगिंग फिएस्टा के सेकंड रनर अप ने सक्रिय रूप से भाग लिया। समारोह के मुख्य अतिथि भारत स्काउट एवं गाइड्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार कौशिक थे। 26 जनवरी 2022 को अपस्किलिंग आवर नेशंस यंग वर्कफोर्स शीर्षक के साथ वेबिनार की राष्ट्र स्तर की श्रृंखला के दौरान राष्ट्रीय मुख्यालय के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। 8वां वेबिनार 26 जनवरी 2022 को प्रवीणता बैच, एम्बुलेंस मैन और एम्बुलेंस बैच विषय पर आयोजित किया गया, जहां संसाधन वक्ता श्री वासु MB बीएसजी दक्षिणी रेलवे राज्य का LT स्काउट थे। 73वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2022 को पूर्वोत्तर क्षेत्र के सदस्यों द्वारा मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश में युवा कल्याण अधिकारी श्री L. सोकुन सिंह द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार्यालय के कर्मचारियों और अन्य सदस्यों की उपस्थिति में भारत स्काउट एवं गाइड्स आसाम के राज्य मुख्यालय के राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। A. अहमद कॉलेज, गारोईमारी, कामरू की रेंजर यूनिट एवं रोवर यूनिट ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया। 73वें गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे भारत स्काउट एवं गाइड्स के सभी जिलों ने 26 जनवरी 2022 को मार्च पास्ट में सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत स्काउट एवं गाइड्स NF रेलवे राज्य के न्यू बोइंगगांव जिला संघ के रोवर्स ने गरीब को कपड़े वितरित किए। नवगठित रंगिया जिला संघ के युवा NF रेलवे भारत स्काउट एवं गाइड्स ने DRM बिल्डिंग रंगिया में 73वें गणतंत्र दिवस परेड में सक्रिय रूप से भाग लिया। बीएसजी चांदमारी हायर सेकेंडरी स्कूल, कोहिमा नागालैंड के स्काउट्स एवं गाइड्स ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्कूल के आसपास स्वच्छ भारत अभियान चलाया। त्रिपुरा राज्य के सभी जिलों में भारत स्काउट एवं गाइड्स के सदस्यों ने विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर 73वां गणतंत्र दिवस मनाया। बीएसजी त्रिपुरा राज्य के पश्चिम त्रिपुरा जिले के रविंद्रनाथ टैगोर ओपन क्रू के सदस्यों ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अस्पताल ब्लड बैंक GB में रक्तदान किया। भारत स्काउट एवं गाइड्स के सदस्यों ने असम राज्य भारत स्काउट एवं गाइड्स
के फेलोशिप के सहयोग से 27 जनवरी 2022 को मोरी गांव में वरिष्ठ नागरिक गृह और औषधि पूर्णवास केंद्र के कैदियों को नाश्ता, कंबल और वस्त्र वितरित किए। भारत स्काउट्स के सदस्यों और गाइड ने नाश्ता करने वालों के साथ बातचीत की और उन्हें अपनी बुरी आदतों को छोड़ने और बेहतर नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहित किया। 73वां गणतंत्र दिवस उड़ीसा राज्य के सभी जिलों में मनाया गया। राष्ट्र ध्वज को बड़े गर्व के साथ फहराया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं और गतिविधियों जैसे वृक्षारोपण, रंगोली बनाना, लोरी लेखन के साथ साथ अन्य पाठ्य चर्चा प्रतियोगिताओं का आयोजन वस्तुतः इस अवसर पर किया गया। प्लास्टिक टाइटनर चैलेंज हीरो लेवल पर एक राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक वस्तुतः बिहार राज्य भारत स्काउट एवं गाइड द्वारा आयोजित की गई थी। बैठक का संचालन राज्य समन्वयक श्री बैजनाथ प्रसाद ने किया। अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नवादा, सारण और पश्चिम चंपारण जिला संघों के सदस्यों ने प्रेस पावर दरवाजा खटखटाया, इसे साफ किया। मैं एक परिवर्तन निर्माता के रूप में आदि में सक्रिय रूप से भाग लिया। 135 स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स और रेंजर्स और यूनिट लीडर्स ने मिलकर एक परिवर्तन निर्माता के रूप में काम किया। समाज के 25 लोगों ने भी भाग लिया। 30 जनवरी 2022 को भारत स्काउट एवं गाइड्स के माननीय उपाध्यक्ष डॉक्टर काली प्रसाद मिश्रा द्वारा डॉक्टर राजकुमार कौशिक निदेशक की भव्य उपस्थिति में अपने ज्ञान को बढ़ाए, स्काउटिंग गाइडिंग को जाने पर एक वेबिनार का उद्घाटन किया। श्रीमती दर्शना पवस्कर, संयुक्त निदेशक कार्यक्रम और प्रशिक्षण, श्री ब्रजेश राम, राज्य आयोजन आयुक्त स्काउट्स, श्रीमती अनामिका दास, प्रशासनिक अधिकारी, उड़ीसा राज्य भारत स्काउट एवं गाइड्स द्वारा राजकुमार कौशिक, निदेशक भारत स्काउट एवं गाइड्स ने अपने समापन भाषण में उपस्थित लोगों को आशीर्वाद दिया। स्काउटिंग और गाइडिंग की उत्पत्ति पर सत्र श्रीमती अशरत जमाली, राज्य प्रशिक्षण आयुक्त, मार्गदर्शिका द्वारा लिया गया था। कार्यक्रम का संचालन श्री बबलू गोस्वामी, सहायक निदेशक आईसी पूर्वी क्षेत्र द्वारा, दिन प्रभारी मिस प्रीति कुमारी, क्षेत्रीय मीडिया संवाददाता मिस पूनम प्रजापति, राज्य समन्वयक टीटीपीसी और श्रीमती संगमित्रा गौतम की मदद से किया गया था। उड़ीसा राज्य के कटक, गंजम और जरसुगुड़ा जिला के स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स और रेंजर्स ने 1 फरवरी 2022 को अपने अपने कॉलेज, गांव और सार्वजनिक स्थान पर स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। उन्होंने आसपास की सफाई की और स्वच्छता का संदेश फैलाया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भारत स्काउट एवं गाइड्स और आयुष मंत्रालय के बैनर तले पूरे पूर्वी क्षेत्र में सूर्य नमस्कार गतिविधियां की गई। रेलवे भर्ती बोर्ड के एनटीपीसी के CBT 1 के परिणाम के खिलाफ उम्मीदवारों का शिकायत या सुझाव शिविर स्थानीय NC घोष संस्थान में दानापुर मंडल द्वारा आयोजित किया गया था। भारत स्काउट और गाइड पूर्व मध्य रेलवे दानापुर के सदस्यों ने संस्थान में अपनी सेवाएं प्रदान की। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूर्वी तट रेलवे के खुर्दा रोड जिले में लोरी लेखन और रंगोली बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रोवर्स और रेंजर्स ने जिला स्तर पर उत्साहपूर्वक आयोजित प्रतियोगिता में भाग लिया और आजादी का अमृत महोत्सव में अपनी व्यक्तिगत प्रविष्टियां जमा की। स्काउटिंग ऑन द स्ट्रीटस्केप। ईस्ट कोस्ट रेलवे की वॉल्टेयर जिला इकाइयों द्वारा सड़कों पर जाकर और सड़क पर गतिविधियां करके एक नई इकाइयों के निर्माण में स्ट्रीटस्केप के साथ गुंजाइश खोजने के लिए जनता तक पहुंचने के लिए एक नई अवधारणा विकसित की गई थी। यूनिट लीडर्स द्वारा विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, इकोरसा स्टेडियम और वायरलेस कॉलोनी को कवर करते हुए एक विस्तृत खेल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 50 स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स और रेंजर्स ने भाग लिया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री माननीय श्री अनिला भेड़िया ने 26 जनवरी 2022 को राज्य पुरस्कार विजेताओं स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स और रेंजर्स भारत स्काउट एवं गाइड जिला कांकेर को प्रमाण पत्र वितरित किए। बीकानेर लोकल एसोसिएशन ऑफ राजस्थान स्टेट भारत स्काउट एवं गाइड्स द्वारा बीकानेर में 26 जनवरी 2022 को 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्काउट्स और गाइड्स और रोवर्स और रेंजर्स ने देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसके बाद गॉड ऑफ ऑनर, सलामी और राष्ट्रगान प्रस्तुत किया गया। शहीद दिवस के अवसर पर 30 जनवरी 2022 को राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड्स जिला मुख्यालय चुरू में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। 30 जनवरी 2022 को शहीद दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में जिला युवा बोर्ड, नेहरू युवा केंद्र और राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड्स जिला मुख्यालय सीकर में जिला कलेक्टर कार्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर शांति मार्च भी निकाला गया। स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स और रेंजर्स और भारत स्काउट एवं गाइड्स की यूनिट लीडर्स उत्तर पश्चिम
उत्तर पश्चिम रेलवे ने 26 जनवरी 2022 को जिला मुख्यालय जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में गणतंत्र दिवस मनाया। आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम जिले में भारत स्काउट एवं गाइड्स ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर 30 जनवरी 2022 को रेलवे स्टेशन पर गरीब लोगों के बीच भोजन वितरित कार्यक्रम का आयोजन किया। आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम जिले में भारत स्काउट एवं गाइड्स ने 31 जनवरी 2022 को माधवधारा हिल में साहसिक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 24 स्काउट्स, गाइड्स और यूनिट लीडर्स ने भाग लिया। मैसेंजर्स ऑफ पीस ग्लोबल नेटवर्क ने भारत स्काउट एवं गाइड्स राष्ट्र मुख्यालय द्वारा आयोजित 1 फरवरी 2022 को वोजम पहल के पहले वेबिनार को सफलतापूर्वक पूरा किया। सम्मानित अतिथि वक्ता श्री एस प्रसन्ना श्रीवास्तव, निदेशक संगठनात्मक विकास और MOP APR वोजम श्री मधुसूदन अवला और सुश्री केट ने शांति के दूतों के सभी विवरणों को शामिल करते हुए अद्भुत सत्र दिए। वेबिनार में श्री PGR सिंधिया, महासचिव अध्यक्ष इन काउंसिल भारत स्काउट एवं गाइड्स और राज्य के मुख्य आयुक्त कर्नाटक और श्री MA खालिद, अतिरिक्त मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त BSG इंडिया डॉक्टर राजकुमार कौशिक, निदेशक BSG इंडिया द्वारा समापन टिप्पणी के साथ प्रतिभागियों ने 374 प्रतिक्रिया प्रपत्र प्राप्त हुए। उत्तराखंड राज्य भारत स्काउट एवं गाइड्स ने राज्य स्तरीय रणनीतिक योजना समीक्षा कार्यशाला 27 से 29 जनवरी 2022 तक राज्य प्रशिक्षण केंद्र भोपाल पानी में आयोजित की गई थी। राज्य अधिकारी द्वारा विजन 2024 के आलोक में रणनीतिक योजना की समीक्षा की गई थी। श्रीमती सीमा जंसारी कार्यशाला के समापन समारोह में राज्य के मुख्य आयुक्त और राज्य के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। श्री SS रे, सहायक निदेशक उत्तरी क्षेत्र ने कार्यशाला का नेतृत्व किया। भारत स्काउट एवं गाइड जम्मू और कश्मीर के एक प्रतिनिधि मंडल ने 1 फरवरी 2022 को जम्मू नगर निगम के मेयर और आयुक्त के से मुलाकात की। तीसरा 700 और 23वां अंतर्राष्ट्रीय साहसिक कार्यक्रम भारत स्काउट एवं गाइड्स के राष्ट्रीय साहसिक संस्थान पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ, जिसमें भारत के 11 राज्यों यानी पश्चिम बंगाल, NCR रेलवे, जम्मू और कश्मीर, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के 102 प्रतिभागियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रोजेक्ट संकल्प के 12 सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों में से 3 युवा असम, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ राज्य भी राष्ट्रीय मुख्यालय के प्रयोजन के तहत कार्यक्रम में शामिल हुए। नेपाल स्काउट के मुख्य आयुक्त और नेपाल स्काउट्स और APT के अन्य अधिकारी 7 फरवरी 2022 को समापन समारोह कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय साहसिक संस्थान पंचमढ़ी का दौरा कर रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन श्री अमर बी छेत्री स्काउट्स कार्यक्रम और प्रशिक्षण BSG NHQ के संयुक्त निदेशक राष्ट्रीय साहसिक संस्थान के नेतृत्व में पेशेवरों के सहयोग से किया गया है। कोविड खबरें। भारत स्काउट एवं गाइड्स NF रेलवे बदरपुर जिला संघ ने 15-17 वर्ष और 18 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए जिला स्काउट हट बदरपुर में 25, 27 और 29 जनवरी और 1 फरवरी 2022 को कोविड-19 टीकाकरण अभियान का आयोजन किया। 500 लोगों का टीकाकरण किया गया। 10 सर्विस रोवर्स और रेंजर्स की एक टीम ने टीकाकरण केंद्र में अपनी सेवाएं दी। शिवाजी और लक्ष्मीबाई ग्रुप के रोवर्स और रेंजर्स आद्रा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ने के बोकारो दक्षिण पूर्व रेलवे राज्य भारत स्काउट एवं गाइड्स ने 1 फरवरी 2022 को बोकारो में कोविड टीकाकरण शिविर में अपनी सेवाएं प्रदान की। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोरबा जिले के स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स और रेंजर्स भारत स्काउट एवं गाइड्स ने 26 जनवरी 2022 को बाजार क्षेत्र और कोरबा शहर के CSEB चौक में बैंड के साथ रोको टोको जागरूकता अभियान का आयोजन किया। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाएं और लोगों को कोविड से बचाव के लिए इसे पहनने का आग्रह किया। शहीद दिवस के अवसर पर 30 जनवरी 2022 को भारत स्काउट एवं गाइड्स जिला बिलासपुर के सदस्यों ने गांधी चौक पर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और रोको टोको अभियान के तहत लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया। तमिलनाडु राज्य भारत स्काउट एवं गाइड्स की सुश्री शंकरमल LT गाइड ने 26 जनवरी 2022 को अपनी अंतिम सांसें ली। आगामी कार्यक्रम अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक NAI कारशोंग दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय साहसिक कार्यक्रम। अधिक जानकारी के लिए कृपया NHQ परिपत्र संख्या 24/2022 दिनांक 3/2/2022 देखें। अंतर्राष्ट्रीय सौ स्मार्ट 2.0 कार्निवल 2022 मेडागास्कर। अधिक जानकारी के लिए कृपया NHQ परिपत्र संख्या 22/2022 दिनांक 31/1/2022 देखें। एडवोकेसी चैंपियंस और पीयर ट्रेनर्स पर राष्ट्रीय स्तर का वेबिनार। हीरो लेवल प्लास्टिक टाई टर्नर चैलेंज के लिए प्रशिक्षण। अधिक जानकारी के लिए कृपया NHQ परिपत्र संख्या 21/2022 दिनांक
29/1/2022 देखें। एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम और कार्यक्रम का अनुभव करने का एक शानदार अवसर, इंटरनेशनल सॉस्मा 2.0 कार्निवल 2022 तुनिशिया गर्ल स्काउट्स के साथ 18 से 20 जनवरी 2022 तक जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से 10 पूर्वाह्न 12 अपराह्न IST है। पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2022 है। अधिक जानकारी के लिए कृपया NHQ परिपत्र संख्या 20/2022 दिनांक 27 जनवरी 2022 देखें। लीडर ट्रेनर CLT बांग्लादेश के लिए 700 कोर्स। अधिक जानकारी के लिए कृपया NHQ परिपत्र संख्या 17/2022 दिनांक 20/1/2022 देखें। अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक NAI पंचमढ़ी में राष्ट्र साहसिक कार्यक्रम। अधिक जानकारी के लिए कृपया NHQ परिपत्र संख्या 14/2022 दिनांक 13/1/2022 देखें। 24 से 28 फरवरी 2022 तक STC अंबाला हरियाणा में आयोजित होने वाले अंबाला हरियाणा में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय एकता शिविर का स्थान अब NYC गतपुरी से बदल दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए NHQ परिपत्र संख्या 18/2022 दिनांक 20/1/2022 देखें। विश्व चिंतन दिवस WTD 2022 का उत्सव। अधिक जानकारी के लिए NHQ परिपत्र संख्या 7/2022 दिनांक 11/1/2022 देखें। राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली में कार्यालय में 6/1/2022 से सार्वजनिक व्यवहार पर भौतिक रूप से विचार नहीं किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए NHQ परिपत्र संख्या 5/2022 दिनांक 5/5/2021 देखें। राष्ट्रीय एकता शिविर आजादी का अमृत महोत्सव हरियाणा। स्थान NYC गतपुरी पलवल हरियाणा। तिथि 19 से 23 फरवरी 2022। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022। BSG अवार्ड 2021 के दूसरे उत्कृष्ट स्काउट और गाइड्स। अधिक जानकारी के लिए NHQ परिपत्र संख्या 156/2021 दिनांक 23/11/2021 देखें। एशिया पैसिफिक लीडरशिप अवार्ड 2023 यूनिट लीडर्स डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कमिश्नर्स सर्विस टू गर्ल गाइड्स एवं गर्ल स्काउट्स गाइड विंग के लिए। अधिक जानकारी के लिए NHQ परिपत्र संख्या 145/2021 दिनांक 28/10/2021 देखें।